welcome to Three the People. I am Mehul Singhvi. I am Karan Chanda. I'm Kartavya Arora. और आज हमारे साथ अल्फा बीटा गामा की कास्ट एंड क्रू. So we have the director Shankar sir. Hello guys. We have Amit sir. Hi everyone. And we have Nishant sir. Hi. So Alpha Beta Gamma is a film जो Cannes Film Festival में 2021 में आई थी. 22. See, he knows that. He's so smart. मेरी रिसर्च पूरी है. नहीं है. So sir, can we start with what the film is about and what your journey was? If Director. so मैंने इनको बहुत समझाया है. इनको बता. हम सब भूल गए. I told them what the film is. Not they will tell what the film is about. भाई बताओ ना थोड़ा सा ऐसे. अच्छा ठीक. ये तो it's basically it's ये मतलब बड़ी मेरी बड़ी करीब की कहानी है actually. तो so basically I mean I'm married and so what happened was I think when I was 7 years down the line, so I called up my father and I said, यार बहुत मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत दिक्कत चल रही लाइफ में मेरी. तो he said, listen, you know, you hang in there. This is called the 7-year itch. इस वजह से होता है. वो बात आई गई होगी. उसके बाद then a couple of years later, I have a writing partner called Menka. So we write together. So a lockdown था and she just woke up and she said, मेरे को ना एक script का idea आया है. And I said, okay, बताओ क्या idea था? So she gave me a thought. And somehow that gestated और वो thought ये था कि अगर उस दिन जिस दिन मैंने मतलब सोचा था कि मैं let's break this marriage और अगर मैं चला जाता तो होता क्या? And so the idea stemmed out of that point. So the idea is basically there is this couple called Chiranjeev and Mithali and they were childhood sweethearts, went to school together, had a like a crazy relationship. तुम लोगों का नहीं होता है ना आजकल, तुम्हारा थोड़ा छोटा होता है बट हमारे टाइम पे लंबा होता था. They had a long exactly shit. कोई क्यों बोल रहे हो? हमने ऐसा कोई बिगाड़ा. But they had a long relationship and then they eventually got married. So after and what happens in life, you change, your choices change. मतलब 10 साल पहले चाहिए था आज वो नहीं चाहिए. It's as simple as that. So what happens is Chiranjeev realizes that today his career matters more to him and he walks away from the relationship. okay. 2 years later, they're both seeing different people. Oh. That is where the movie begins. It's the height of the lockdown. It's the first lockdown, and Mithali calls up Chiranjeev और वो कहती है कि यार सुनो तुम फ्री हो, क्या कर रहे हो, कहाँ पर हो, क्या हो रहा है. And she says कि तुम घर आओगे, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है. तो कहता हम बताओ क्या बात है. He says listen, I want a divorce. He says okay, and because I want to get married. Oh, okay. तो यार चिरंजीव के ईगो को लग जाती है. मतलब वो लड़कों का होता है ना, और कैरेक्टर में दिल्ली वाला का तो मतलब दिल्ली वाला खत्म. ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, बंदी तो अपनी है. सो देन चिरंजीव बोला ठीक है मैं शाम को घर आता हूँ, शाम को बात करते हैं. पर वो सुबह उसके घर चला जाता है मिताली के, जहाँ वो पहले रहा करते थे दोनों साथ, देयर हाउस. और वहाँ जाता है मॉर्निंग में एंड सी लाइक हाउ लाइक यू गाइज आर, यू हैव रिलेशनशिप्स, यू आर ओके विद देयर एक्सेस, राइट? Yeah. That it's cool. So they are also cool, the 4 of them. So they know they're seeing different people. So he lands up at her house and he's already there. And they sit across the table. अभी divorce ले लेते हैं, बढ़िया कोई दिक्कत नहीं, lawyer से बात करूँ, divorce, all those things happen. And he says, listen, you know what? I'll just leave, and that's about it. 10 minutes he comes back. So there's a news in the building. That there are 2 COVID positive cases. And the building is shut for 14 days. Oh. So the idea is Alpha Beta Gamma is so a wife, her almost ex-husband, her about to be husband are locked together in a house, and when the 3 of them together, the reaction that happens is basically the nuclear reaction. That house is the reactor, and what comes out are the alpha, beta, and gamma particles. That's the story. बहुत सोच के मैंने सब सोच के बोला है. मतलब इतना बढ़िया मैं प्रिपेयर कर रहा था. किताब लिखेगा. प्रिपरेशन मैंने कम करा. ये क्या है बताने के. सिर्फ जेन्युइनली मतलब अगर मुझे 15,000 लोगों ने बोला कि सिंपल टाइटल कर दे. हाँ मैं वही सोच रहा था. तुम मैं मेरा तेरा मेरा. मैं कहा नहीं हम तुम और वो. तो फिल्म तो मैंने बनाई, लेकिन टाइटल ढूंढने समझाने मेरे को बहुत मेहनत लगती है. टाइटल कोई पढ़ेगा तो उसको रोम कॉम वाली फील नहीं है ना टाइटल से. रोम कॉम है ही. शंकर के जितने भी स्क्रिप्ट्स है ना, शंकर के जितने भी स्क्रिप्ट मैंने 3-4 सुने होंगे,
स्टोरी कुछ होगा, टाइटल अलग सा ही कुछ होगा, मैंने वो वैसा नाम सोचता है। क्रेजी। तो सर आप लोगों का मतलब ऐसे कोविड के टाइम पे शूट किया था आप लोगों ने या फिर आफ्टर कोविड? हाँ ये एक अलग हाँ बताओ। फर्स्ट लॉकडाउन खत्म हुआ है ना, हाँ फर्स्ट लॉकडाउन 7 जुलाई को खुला था हाँ और हम लोग 3 जुलाई को वी हैड लेफ्ट फॉर पुणे फ्रॉम बॉम्बे। हम लोकेशन पे थे। 40 पीपल या एंड आई थिंक 5 को हमने मुहूर्त शॉट लिया था हाँ और 7 को we started rolling ओह and when we started rolling उस दिन पुणे में लॉकडाउन लग गया, so we shot the whole film in the height of the lockdown. दैट इज मेथड एक्टिंग देन। No, that is No. craziness. लेकिन सर It फिर was crazy यार, it was सैनिटेशन हाइजीन Exactly, मतलब तुम- टेस्ट दिस वॉज अ टाइम व्हेन इवन इफ समवन वुड हैव स्नीज्ड ना, उसको ऑस्ट्रेलाइज कर देते थे, अरे हट जाओ इससे दूर। उसमें उस पीक उसमें आपने मतलब फिल्म बनाना सोचो ना, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टफ्स, कितनी चीज़ें चाहिए शूट के लिए, लोगों का होना, लोगों एक का जगह से दूसरी जगह होना। जाना, बहुत मतलब पूछो ही मत, मतलब इसी का ही ये था गट फीलिंग और ये डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय कि पिक्चर तो बनेगी। हमारे पास हौसला है। ड्रिल निश्चय इसने लिया, दृढ़ निश्चय हौसला है। इसने लिया, बम्बू हमारे लगा। समझ रहे हो भाई? अरे टीम हम पकड़ लेते, 3 बंदर पकड़ के बिठा तीर दे। नहीं, तीर हम पकड़ लेते हैं। तो हो जा रहा होता है। ए आ जा, तू कहाँ जा रहा है, आ जा। अल्फा बीटा गामा मामा। नहीं यार, तीर की सवारी। ऑन अ सीरियस नोट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। इसका कॉन्फिडेंस था कि फिल्म बनेगी और रिलीज होगी और अच्छी बनेगी। हम तो बस बनने का एक ही रीज़न था, ये चाहता था। बट हाउ इज द जर्नी बिन सो फार कि 4 साल एंड now you're getting a release? What do you think? हमारी शक्लों पे क्या लिखा हुआ मेरे है? को शक्लों पे ना, मेरे को जनरली फील हो रहा है कि अब आप एक्साइटेड हो कि जानना है कि अब लोग क्या से लोगों का क्या हाँ यार, ये तो लोगों का एक्साइटमेंट आप Smart सब में है, अभी वो मोर देन दैट कि यार हमने एक कहानी बनाई है, नहीं वो सच बात है। हमने कहानी बनाई, हम चाहते हैं कि क्यों बनाए ताकि लोग देखें। इसका अंदर से फर्स्ट फिल्म जो होता है डायरेक्टर का, वो उसका अपना होता है, उसने कहीं देखा होता है या झेला होता है या फील किया होता है, तो लोग देखें। एंड आई जेन्युइनली फील कि इट्स अ नाइस फिल्म, सो पीपल शुड वॉच इट। एंड ठंडा नहीं यार। ये क्या Let's be releasing on 8th of Three March. people लेके 3 टिकट नहीं है, ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं पर on a very nice note जो बोलते हैं, पर जो किया है ना यार, जो काम हुआ है वहाँ पे, अगर मैं ऐसे बोलूँ, आई एम अ 3rd 4th पर्सन एज एन ऑडियंस बैठा हूँ, तुम्हारी जनरेशन का हूँ। तुम लोग शायद 22 23 24 साल के होंगे भी, 20, अरे भैंस क्या। बचपन चल रहा है तो 20 साल का लड़का अगर उसको पिक्चर को देखेगा ना, उसकी आंखों में आंसू आएंगे, उसके दिल में स्माइल आएगी, उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पिक्चर वो है पिक्चर। मैं तुम लोग सब फिल्म स्टूडेंट हो, गोदार्द का नाम सुना होगा तुमने? गोदार्द गलत स्कूल में पढ़ते हुए, नहीं पढ़ते हमारी गलत स्कूल में मेरे को यही लग रहा है 3rd year में आके हमारी पढ़ाई हमारे DOP को पता है, हमारे DOP को पता है। अच्छा फ्रेंच न्यू वेव सुना है क्या होता है? अमन को पता है। उसमें गोदार्द का नाम सुना है? उसकी पहली पिक्चर कौन सी थी? नहीं पहली नहीं आती, ब्रेथलेस ब्रेथलेस ही पहली थी, पहली। वो भी पहली थी। तो फ्रेंच न्यू वेव ब्रेथलेस से शुरू हुआ था, इंडियन न्यू वेव अल्फा बीटा गामा से शुरू होगा। क्या बात बोल दी आपने। सत्य है भाई, सत्य है, झूठ बोलता नहीं, पंडित हूँ। सर लेकिन जेन्युइनली मतलब आपके लिए कितनी प्राइड की बात है कि इट्स अ डेब्यू फिल्म एंड इट इज गॉन टू दिस लेवल, राइट? एंड हाउज योर पीपल अराउंड यू रिएक्टेड दिस? People around me or how did I react? How did you react firstly? The two separate things. तो मैंने ऐसा सोचा नहीं था ऐसा कुछ करने वाला हूँ। मेरा बहुत सिंपल प्लान था, एक फिल्म लिखी थी मैंने, मुझे लगा सिंगल लोकेशन की फिल्म है, लिमिटेड रिसोर्सेज थे मेरे पास फिल्म बनाने के लिए। मेरा बहुत क्लियरली एक मानना है कि एज अ फिल्म मेकर ना, इनिशियली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अ ग्रेट स्क्रिप्ट और अ गुड स्क्रिप्ट। Yeah. द नेक्स्ट थिंग आर द एक्टर्स, बाकी सब आई थिंक इट एड्स टू द एक्सपीरियंस। बिकॉज इवेंचुअली आई रिमेंबर जब हम लोग FTI में थे ना, सो आई इन माई फर्स्ट ईयर देयर इज अ क्लास, आई थिंक इट वाज ऑर्गो बासो समबडी, ऑर्गो सर वाज देयर। So they told us that, you know, you look at a very beautiful picture, like
like a very beautiful scenery. It's very it's Swiss Alps for that matter, and you keep looking at it. But the moment a character walks in frame, you start looking at the character. Amazing. So that is the power of an actor, I feel, in a frame. Yeah, very true. Right. Very true. So how you light up the frame, how you shoot, it's eventually what is written and what the actor does with it. So for me that was a thought, and I had no clue कि ये किसी film festival जाएगी. The idea is very simply film बनाएंगे. मुझे लग रहा था अच्छी film है, ज़्यादा बहुत जल्दी बेच दूँगा. I'll interrupt him here. You hold the thought. कि है अच्छी फिल्म बनाएंगे. सरप्राइजिंगली शंकर ने जो फिल्म में सीन लिखा, वो जो चिरंजीव का कैरेक्टर जहाँ से इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो फ़ोन पे बात करता हुआ आ रहा है. वो बोल रहा है कि मेरी पिक्चर जो है ना कांच में सिलेक्ट हो गई है. ऐसा वाला है कि there's a dialogue. हाँ. है Oh. Subconscious, I don't know. मतलब इट्स सो अनकैनी, इट्स सो अनकैनी. उसमें और मिडिल में जाके एक सीन आता है जब एक्चुअली उसको पता चलता है, उसके बाद चिट्ठी आती है कि उसकी फिल्म होगी है सिलेक्ट, और जो ये फ्रांस वाली जो है फ्रेंच फिल्म अकेडमी उसकी अगली पिक्चर प्रोड्यूस कर रही है, जो कि होगा, जो कि हो रहा आधा तो हो गया है, आधा भी होगा, आधा भी होगा. इट्स सो अनकैनी. वो कह रहे उनको और कांस वाली फिल्म चाहिए, तो बोल फिल्म मुझे बनानी थी, खुद हाँ, ये डायरेक्टर डालो, बनी, ये सॉन्ग डालो. अबाउट समबडी. यार तो मैं कुछ नहीं, फिर फिल्म बनाने की मेरी सोच थी और फिल्म बन गई यार. फिल्म बनी और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि किसी फेस्टिवल में भेजूंगा. अभी ऑनेस्टली मतलब बहुत अच्छी बनी भाई. मेरे बंदा फिल्म बनाऊंगा, फिल्म विल सेल इट टू समबडी एंड बहुत सारे पैसे आएंगे, लॉट विल बाय मर्सिडीज और समथिंग. एक्चुअली प्लान था, पर ना मुझे वैसा लगता है ना कि फिल्म पहली फिल्म थी, डेब्यू फिल्म थी, मोर देन एनीथिंग ना. मतलब Cannes is great. Yeah. Ify Goa was where it began. The movie premiered at Ify in 2021. Okay. I mean, the NFDC people, I mean, the Andy Vinci were really nice to us. Ify was really amazing. It was a great experience, a great platform from where everything kind of changed. And what happened there was, sorry again to interrupt him, third time I'll not say sorry. I directly No, it's a way, it's after 10 seconds you have to stop, I'll talk. So what happens in Ify was that people from Ify, the management committee, the PIB, and they thanked the team of Alpha Beta Gamma for actually making Ify like a carnival, Lively. like a मेला बना दिया था सूरजकुंड का. They were crazy about the songs of the film. And we were crazy. We were crazy too. We were dancing and singing, and the crowd was mad, man. They were in love with the songs of the film. They still will be when they'll be out. कितनी क्रेजी फीलिंग होगी ये तो. अरे पागल थे यार. मैं सुन के एक्साइटेड हो गया. You can see the tweets done by PIB. You can see it. It's on YouTube. It's on Twitter. अभी जो X हो गया है, एलन चाचा का. So ये सब. Please continue. अब गाने की बात हो ही गई है तो दो लाइन आपके से. अरे मुझे गाना नहीं आता, ये मजाक कर रहा है. दो लाइन ऑफ कैमरा इन्होंने बोला था कि सर गाते हैं. मैं पब्लिकली अपना भद पिटवाऊं, मतलब क्या दिख रहा है, कुछ लिखा है यहाँ पे. पेपर तुमने इनको लगाया. आपकी आवाज सबसे दो लाइन. अरे नहीं सर, मतलब क्या है. हो जाए सर. फिल्म का गाना गा दो, प्रमोशन भी हो जाएगी. हम लोग साथ में चेक करा गाना याद है भी कि नहीं है आपको. सर कोई भी दो लाइन है. अरे नहीं यार, मुझे एक तो गाना आता नहीं है, दूसरा गाना याद भी नहीं. ये और मैं जाएंगे बड़ा पाव. सर शुरू करो आप, हम ज्वाइन करते हैं. अरे नहीं आता यार, पागल है क्या? मतलब तेरी बाहों में है दुनिया मेरी, तेरे बिना मुझको है जीना नहीं. तू है खुदा, तू ही धर्म, तू ही मेरा. भाई डायरेक्टर के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ेगा. भाई इफ़ी में आग लगाई थी इस गाने ने, और कांच में भी लगाई थी, जिसको तुम कैन कैन कह रहे हो बार बार. सिर्फ मैंने तो सुना था कांस होता है, कांस होता है. मैं कोई बात नहीं, प्रॉपर confuse नाउन हो है, गया. प्रॉपर नाउन है, जैसे जो मर्जी प्रोनाउंस कर लो. मेरे को इसने बोला कैंस होता है. मैंने कहा ठीक कैन है. ही होता है, कैन. कैंस ही होता है. नहीं, बोलने वाले कैंस भी बोलते हैं, कान भी बोलते हैं. कैंस गूगल पे कान कैंस बोल सकते, जो कान बोलो, जो हाँ, कुछ लोग कान बोलते हैं. हम जो वहाँ से होके आए, हमने तो हम वहाँ होकर आए तो मुझे थोड़ा सा बताओ ना मॉडर्स में भी आ रहा है. उसके बारे में बताओ होके आए थे ना. वहाँ जाना फ्लाइट में, फिर वहाँ रुकना, फिर जाके ऐसे पूरा ए भाई ये 2024 है. बेस्ट पार्ट था एमिरेट्स में जाना. बेस्ट. बस
इस साल फ्लाइट बढ़िया थी, मुझे बहुत मजा बहुत मजा आया। मैंने बहुत बार पानी पिया। अच्छा वैसा बियर भी तो मिलती है एमिरेट्स में। हाँ तो पानी हमने भी बहुत यार हाँ कहता सर तुम पूछ रहे थे तो जो 4 साल वाली बात है ना यार, ये 4 साल में ना हमें बहुत सिखा दिया, बहुत एजुकेट हो गया मैं लाइफ के साथ। मतलब ना जो आप सोचते हो ना कि ये फिल्म, इस फिल्म से ये होगा, आप ये करोगे ना, इस फिल्म ने मुझे ये सिखा दी कि मुझे करना क्या है। अल्फा बीटा गामा के बाद थीटा नीटा बीटा भी। हाँ मतलब हर तरह से ना आप समझ जाते हो कि ये नेक्स्ट चीज ये करनी है। एंड मैंने मतलब मोर देन द लॉरेल्स जेन्युइनली मुझे लगता है आज से 4 साल पहले आई वाज एन एरोगेंट बास्टर्ड। No, don't badmouth yourself. I know, but no, Let but me no. say that. Yeah. I agree. नहीं तू एकदम नहीं बोला गाली दे, तू एकदम नहीं देगा, मेरे होते हुए तू कैसे गाली दे? इससे इनका मौका यार, इनका मौका, इनकी एक्टिंग रोकी ना मैंने कैमरा पे। कहीं तो इम्प्रोवाइज करेंगे। इनका दर्द है, मैं समझ रहा हूं इम्प्रोवाइजेशन। मेरा मुंह दर्द हो गया अभी 20 मिनट में। खींचो और कितना है? But यार coming back, but I really feel that this मतलब if there's something, मतलब this film has taught me gratitude in life, if nothing else. And इससे बड़ा learning या take away हो नहीं सकता, मेरी लाइफ में था ही नहीं कि मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, ये हो सकता है, वो है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। फिल्म की अपनी जर्नी, अपनी डेस्टिनी होती है, आपसे बन जाती है, आप उसको बनाते रहते हो, लोग जुड़ जाते हैं, चलती रहती है। That is all. एक बार बहुत ग्रेट फिल्म मेकर थे नासिर हुसैन साहब, उनको एक बार लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला था जी का। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट एक ही बार मिलता है। जी में एकदम जी में मिलेगा। फिल्म फेयर भी मिल सकता है आपको 3-4 जगह। तो बढ़िया बढ़िया। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं, तो क्लासिक्स। तो उनसे पूछा गया था कि, तो उन्होंने एक ही लाइन का स्पीच था जो मुझे याद है, मैंने बचपन में देखी थी कि अच्छी फिल्में बन जाती हैं। तो मुझे लगा ये क्या, तब समझ में नहीं आया, लेकिन एक्चुअली उस लाइन में बहुत डेप्थ है। आप बोल नहीं सकते कि मैंने, आप अपना 100% ट्राई कर सकते। जैसे इसने स्क्रिप्ट लिखी है, आई स्टिल रिमेंबर इज लाइक निशान भाई ये लिखी है, जस्ट ट्राई कर रहे हैं, इससे ऊपर का हम लोग कुछ करें। तो हमने अपना सब 100% डाला, टेक्नीशियन सब ने मिल के, फिर क्या बनती है वो तो आपके हाथ में नहीं है। निशान भाई ने 200% डाला। तो उसके बाद बनने के बाद लोग कैसे रिसीव करते हैं वो भी आपके हाथ में नहीं है। That's true, हाँ definitely वो तो आप बस लिख सकते हो। अब आपने जैसे लिखा, सामने वाले ने क्या समझा, कैसे पर्दे पे आई, लोगों ने कैसे रिसीव किया, बहुत कहीं भी गड़बड़ा सकती है फिल्म, तो इसलिए बन जाती है। तो ऊपर वाले की उस सब चीज़ों को संभालने के लिए निशान भाई ने क्या किया मैं बताता हूँ। एक सीन था, क्या किया? एक खतरनाक सा सीन था, ठीक है। उसमें बातें चल रही है, मैं और निशान भाई, हम 2 ही लोग थे बस उस सीन के अंदर। तो उस सीन में मैं ही बोल रहा था कुछ, तो निशान भाई, शंकर, हम दोनों ने वो इम्प्रोवाइज़ किया, निशान भाई और मैंने सीन पढ़ा। डायरेक्टर साहब आए और निशान भाई को बोला कि भाई वो थोड़ा सा ना ऐसा पता चलना चाहिए ऑडियंस को ये, और भाई की एक लाइन नहीं है उसमें सीन में। तो भाई थोड़ी देर तक सुनते रहे डायरेक्टर साहब को, ये बोलता है यार शंकर ठीक है जेस्चर वेस्चर से, पर ऑडियंस को तो पता चलेगा जब सुनेगी। बोलूं क्या? 2 लाइन ही नहीं है। It's one of the best scenes. क्या है वो फिल्म? वो डिपेंड करेगा सेंसर पे, वो डिपेंड करेगा सेंसर पे। जैसे आप सब लोग को नहीं पता हो तो ये सब FTI के बच्चे हैं, लेकिन बच्चे तो हम हैं, ये सब लेकिन एलुमनाई है। आसान भाषा में फिल्म मेकिंग का IIT है। तो जैसे मैं एक हॉस्टल स्टूडेंट हूँ, आप लोग वहाँ पे ऐसे हॉस्टल स्टूडेंट्स थे या ऐसे डे बोर्डर्स थे? जनरली सब हॉस्टल्स की, मैं डे स्कॉलर था। नहीं इसका अलग था। और अलग कैसा था? हम हॉस्टल में बहुत खतरनाक अलग था। हाँ अरे यार मुझे मैं बोलूंगा वो मेरे को कुछ भी बोले मैं बोलूंगा। कहाँ जा, नहीं जाना पड़ेगा। बोलो नहीं जाओ। अरे जाओ तो बताओ सर, अब ऐसे मत बोलो। ये अकेला सा लड़का था जो शादी करके FTI पढ़ने आया था। और वो भी भाई ऐसे नहीं, लड़की भगा के लाया था लड़का। So he used to stay out. He had a family.
and he was studying, also working in regional cinema to run his house. And his wife, who's now the producer of Alpha Beta Gamma, was also working to run the house. As a receptionist. Oh. And he was working, I don't know, he will say. I worked as a, so I'll tell you, so what happened was so we ran away and got married, right? Yeah. So the family was not willing to support us financially. So तुमने डिसीजन लिया है खुद करो. तो जो शुरू में पैसे थे वो तुमने शराब पी ली ना शादी की पार्टी कर ली. ये शराब पी के सारे पैसे खत्म हो गए. जब पैसे खत्म हो गए तो पैसे थे नहीं हमारे पास. तो घर से मेरे को डांट पड़ती थी. And I was 23 at that time. Oh, so you got married at 23 only? Yeah. So अभी क्या करा जाए? So I think first year किसी तरह से हमने खींचा and she was unable to find a job. और मैंने second year से I used to work as a production manager, as a spot boy. Yeah. Right. And nobody knew about That this. has been a journey, right? And nobody knows this actually. अच्छा एक्चुअली This is the first time I'm telling नहीं this कहाँ पे to anybody. पुणे में नहीं Anybody I'm तो काम telling this, कर like only very close people सुबह know. सुबह काम पढ़ाई So I करता worked था, as a जाके spot जॉब person, करता I था. worked as a production manager, like for 200 rupees an hour, 400 rupees for 4 hours, right? And my wife Mona was a producer, so she's an MBA HR. But she didn't know Marathi, the common language. Then Maharashtra put the spoken language. तो उसको HR में job नहीं मिली. So finally she figured out a job at like a VLCC kind of a clinic, the fat loss clinics. So she worked as a receptionist there, and I did all these things and eventually, but I finished FTI eventually, yeah. And he finished it with flying colors. They had a very beautiful Hindi adaptation of 12 Angry Men. Oh, अच्छा. ठीक है, तो इस moral of the story क्या है? वो सब छोड़ो. भाई एक्टिंग स्टूडेंट है. आप एक्टिंग स्टूडेंट हाँ सुभाष घई जैसे एक्टिंग स्टूडेंट है जो डायरेक्टर बन गए. तो ये कनेक्शन देखो तुम लोग का है. सुभाष घई अभी 4 सवाल. सर आपका पहले मुझे आप बताओ सुभाष घई से कनेक्शन आपका. चलो हाँ पहले इनसे पूछो. मुझे वो पता है आपकी फर्स्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड बाय हिम ना. सुभाष घई सर के साथ तो यार टू बी ऑनेस्ट आज अगर मैं बॉम्बे में हूँ तो इट्स बिकॉज ऑफ मुक्ता सर्च लाइट्स एंड मुक्ता आर्ट्स. तो FTI से जब निकला था तो साइकिल की ऑडिशन चल रही थी, मैंने दी, फिल्म मिलाई तो हमने शूट किया. सनी हिंदुजा भी था उसमें. तो टॉम वॉल्टर सर सब थे. तो उसके बाद इनिशियली अगर मैं बोलूँ तो मुक्ता नहीं मुझे पाला है. इन रिटेनरशिप जो मिलता था उससे ही मेरा घर चलता था. तो 2-3 साल जो था वो, तो उसके बाद जब 2-3 साल बाद काम मिलना शुरू हुआ तो फिर काम. अदरवाइज तो इनिशियली जो बॉम्बे में तो सुभाष जी मेरे हमेशा ही गॉडफादर रहेंगे. तो उनके साथ अच्छा मतलब जब भी अगर कहीं दिख जाते मिलते तो इज़ वेरी नाइस, वेरी स्वीट. सुभाष जी भी, राहुलपुरी सर भी. सो मुक्ता हैज़ ऑलवेज बीन माई फैमिली काइंड ऑफ अ थिंग. भले ही मैं अभी रेगुलर टच में नहीं हूँ, बट जब भी विस्लिंग वुड्स आता हूँ तो मुझे इनिशियली बैंड्रा में ऑफिस होता था मुक्ता का. फिर विस्लिंग वुड्स में बीच में आता था जब मैं कॉन्ट्रैक्ट में था रेगुलरली. तो मुक्ता जब आता हूँ आई फील मेरे लिए FTI जैसे ही है. तो सुभाष जी के साथ भले रेगुलर टच में ना हूँ बट ही विल ऑलवेज रिमेन माई गॉडफादर. एंड इज़ अ वेरी स्वीट. मतलब मैं यार कोई आदमी बड़ा होता है ना, कोई रीज़न है. सुभाष जी मतलब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि खुद स्ट्रगल करके आए हैं. उनको ना जैसे कि आप जब नए आते हो, आप कहीं पे पैसे मांगने में भी आपको डर लगता है कि काम ना चला जाए, वो सब चीज़ें होती है. तो फिल्म की थी, फिर जब काम नहीं तो उनको समझ में आ गया था ये प्रॉब्लम. तो उन्होंने रिटेनरशिप दे दी थी कि बेसिक मंथली इतने खर्चा दे देता था कि काम नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता है. तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है यार. ये बॉम्बे में रहना ही मतलब आपको अगर बेसिक फाइनेंस मतलब हाउस रेंट और बेसिक चीज़ें सॉल्व हो जाए तो आप कुछ भी कर सकते हो. तो ये हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं जो आप हमेशा याद रखोगे ये चीज़ें. तो I think everybody who's making films, all great filmmakers, big producers, वो फिल्में बनाते हैं, वो बड़ा प्रोडक्शन हाउस खोलते हैं और बड़ी फिल्में बनाते हैं और बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं और बड़ी फिल्में बनाते हैं. But actually this man, the great man called Subhash Ghai, वो FTI से निकले. You just mentioned IIT, right? But so he created a Whistling Woods. Yeah. He created an institution
Yeah, that's I commendable. think He's giving it back to the field. he gave it back. It is a very big. It is a very big thing. He, Yeah. you know, and see, there are great filmmakers, great cinema people, and a lot of them actually have the capacity to do that. They have the money, but वे बोलते ना करते नहीं हैं. He did it. Yeah. और तुम्हारे जनरेशन तो जाने की भी नहीं, सुभाष जी ने 25 साल सुपर हिट दिए हैं. और एक टाइम था कि एज अ डायरेक्टर ऑडियंस कॉमन मैन सुभाष जी के फेस जानते थे कि सुभाष जी का नाम ही काफ़ी होता था. और हर फिल्म में नए एक्टर्स लोग, हर फिल्म में नए Yeah, एक्टर्स. and- आज के डेट काम किसी को बोलो तो लोग बोलते हैं अरे फिल्म में स्टार, मैं फिल्म सुनाने जाता हूँ किसी को, प्रोड्यूसर किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस में, किसी बड़े नेटवर्क को, फिल्म में स्टार कौन है? अगर सुभाष जी वो सोचते तो क्या और वो होते? सुभाष जी की फिल्मों के बजट देखो और विथ न्यू कमर्स, इट स्पीक्स ऑफ द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एज अ मेकर ही हैड एंड ऑन हिज क्राफ्ट. मतलब ठीक है यार, मैं एक्चुअली लिटरली वो डायलॉग था ना, वेलकम है, सड़क से उठा के किसी को भी हीरो बना देना, वही किए सुभाष जी ने. और ऐसे नहीं कि छोटी फिल्में बना रहे हैं, लैविश बिग स्क्रीन फिल्म. आजकल तो तुम लोग एक्चुअली वो फिल्म का वो क्रेज नहीं रहा. घर बैठ के आप कोई भी चैनल में देख सकते हो. उस टाइम पे वीडियो कैसेट्स होते थे या सिनेमा हॉल होते थे. सुभाष जी के फिल्मों के वीडियो कैसेट्स ब्लैक होते थे गुरु, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. तू समझ सकते हो किस लिए. खलनायक वलनायक की कैसेट नहीं मिलते थे, वीडियो कैसेट की लड़ाई, वो भी पायरेटेड वीडियो कैसेट, ओरिजिनल नहीं आ रहे हैं. सिनेमा हॉल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तो पुलिस आ जाती थी, डंडे वंडे मैंने देखे हैं स्कूल में जाते ना, खलनायक और सौदागर और राम लखन कर्मा. हमें क्या याद है ना, जब मैं छोटा था, मैं और सर एक ही एज के हैं लगभग, मैं बड़ा ही हूँ एक्चुअली सर से, तो हमें ये याद है, हमें ये बोलते थे कि एक टोपी वाला आदमी आएगा देखो अभी, बिकॉज ही यूज्ड टू बी इन हिज फिल्म्स इन वन Yeah. ऑलवेज. एक सीन गाने में आते थे मोस्टली. So they used to say वो जो टोपी वाला है उन्होंने बनाई है पिक्चर. My parents used to tell me that. He also started as an actor, no? हाँ, आराधना फिल्म में थे छोटे. बट Everybody remembers that. कालीचरण के डायलॉग्स क्या क्या है यार, विश्वनाथ कालीचरण, कर्ज. क्या हो गया? याद आ गई. और उनके म्यूजिक सेंस भी बहुत कमाल थे. So, but for you as an actor, because you've done a lot of work in the South Indian industry as well. So, how's the transition from? Or transition नहीं बोलूँगा मैं, but are they different? Is there any difference between the Hindi film industry and the South Indian film? Because a lot of जैसे I have done mostly in Malayalam, so मलयालम में यार वही उनके, जैसे कि यहाँ पे बजट से आराम से 40, 50, 60 दिन में शूट, जो फिल्में मैंने की 30 दिन में कंप्लीट हुई थी, टाइम टू टाइम, मतलब वेरी प्रोफेशनल और बहुत फास्ट. और जैसे प्रियदर्शन सर यहाँ कितनी जल्दी जल्दी फिल्में बनाते थे, क्यों? बिकॉज वो टेक्नीशियन सारे वहाँ के होते थे एंड उनको पता है टाइम वेस्ट नहीं करना. 9 बजे मतलब स्टार्स भी 9 बजे आ जाएंगे, मतलब उस लेवल पे. हाँ, मतलब बहुत क्या बोलते प्रोफेशनल है एंड कंटेंट पे ध्यान ज़्यादा है. तो स्टोरीज़ पे उनका ध्यान ज़्यादा होता है, परफॉर्मेंसेस पे ध्यान ज़्यादा होता है. मेरा एक क्वेश्चन था कि आपसे नहीं है, क्योंकि आप डे स्कॉलर थे, आप तो आपका लाइफ ऐसे दिख रहा था कि आप बहुत पैक्ड थे, कॉलेज घर सब कुछ. लेकिन मैं हॉस्टलर था ना, तो मेरा आपसे सवाल है, जैसे हम हॉस्टल में थे, हम हैं हॉस्टल के बुरा नहीं मानो, लेकिन हॉस्टल के बच्चों में बच्चे नहीं बोलूँगा, वो थोड़े होते हैं गंदे जानवर. खुद को तो मैं जानवर ही बोलूँगा. ये कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने इन लोगों को हॉस्टल की मैडनेस पता ही नहीं है. हमारे हॉस्टल की मैडनेस इतनी थी कि बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, बच्चे को लग रहा है कि ओ मेरे हॉस्टल में आग लग गई तो आग बुझा रहे हैं, कोई कूद के स्विमिंग करने चला जा रहा है, कोई भाग रहा है, लाइटें उड़ा रहा है, इतना ही हो रहा है हमारे यहाँ. अच्छा हॉस्टल है भाई आप लोग का क्रेजीनेस बताओ. वही जानना है कि आपका, क्योंकि मेरे को मेरा हॉस्टल बहुत क्रेजी लगता है था. अब भाई तुमने हॉस्टल देखा ही नहीं भाई. अब तुम्हें क्या पता है? अभी तो मेलो डाउन हो गया, अब तो ऐसे रैगिंग होती नहीं है और ऐसा FTI में होती है. अभी तो नहीं कभी है. नहीं हुई FTI में. FTI की कितने 70-80 साल की हिस्ट्री. 1969 नो इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ 63 आई थिंक. नहीं हुई है. नहीं हुई आज तक. वहाँ सत्संग होता है. सुना है सत्संग? नहीं, सच में सत्संग होता है. वहाँ सत्संग होता नहीं है. होती यार. बहुत क्रिएटिव तरह से होता है, कुछ वैसे रैगिंग नहीं होता है, बट वेरी क्रिएटिव. अब क्रिएटिव इंटरेक्शन.
क्रिएटिव मुझे थोड़ी अभी सी थोड़ा मेरे को एक्सपैंड अब एक किस्सा थोड़ा सुनाना एक्सपैंड है। करो मुझे जानना है। एक किस्सा बताओ बस एक एक सबसे पूछो, पहले हाँ। इनसे फिर इनसे। चलो मैं तो हॉस्टलर था नहीं तो नहीं। मैं सीनियर मैं बैच के हिसाब से चलता हूँ, बैच के हिसाब से चलता हूँ। आप शुरुआत करो। सबसे पहले आप मुझे हाँ एक बार याद है कि किसी से पूछा था कि डू यू नो जॉन अब्राहम तो उस टाइम और हम हमारे लिए तो जॉन अब्राहम एक्टर है, तो हमें नहीं पता था कि एक बहुत प्रसिद्ध आर्ट फिल्म मेकर है, मलयालम फिल्म के लेजेंड है। तो किसी बच्चे ने बोल दिया यस सर, तो सीनियर्स को पता था कुछ ऐसे आंसर देगा। कौन सी फिल्म देखी? बस जिस्म। और फिल्म स्कूल में आप उसे कमर्शियल सिनेमाओं का नाम लो, इट्स लाइक दिस थिंग। बोला अच्छा जिस्म देखा, अरे बढ़िया है। फिर सीनियर्स ने सब बात कर, यार जिस्म देख ली इसने। अच्छा एक काम करो, तब डिनर के बाद शुरू हुआ था, तो अच्छा 11 बजे ना, चलो दौड़ लगाओ। जब तक कितने घंटे की थी जिस्म? मतलब 2 घंटे की, चलो लगाओ। ऐसे, लेकिन बट हाँ बाद में रोक दिया गया। बस वैसे क्रिएटिव, मतलब आपको फिर थक जाएगा। फिर बोलते आप बताओ जॉन अब्राहम कौन है? हाँ सर पता चल गया कौन है। अच्छा कल से उनके पूरे फिल्म मेकर है, ये है। तो बेसिकली आप नॉलेज बढ़ता था आपका, वो ऐसा वाला था। और कुछ वैसे कुछ फिजिकल कुछ नहीं, फिजिकल कुछ बढ़िया स्ट्रांग हो गए। स्ट्रॉन्ग है। मूविंग ऑन नेक्स्ट बैच। आपका किस्सा बताओ, आपके बैच का। भाई हमारे साथ तो बहुत किस्से हुए हैं। बहुत किस्से हुए हैं। जैसे मैंने बताया, सत्संग बोलते थे, सब लोग मिलते थे, पूरा बैच आता था। रात को 10 बजे हम लोग आते थे, हमारे सीनियर्स आते थे, उनके साथ सत्संग होता था, मुझे बैठते ये थे हम सत्संग लोग। जानना है, क्या है ये सत्संग प्लीज। वही जो हम लोग कर रहे हैं अभी। अच्छा इसको मिर्ज़ापुर में करोगे तो सत्संग हो जाएगा। ठीक है। तो भाई वहाँ पे सारी बातें सब होती हैं। और उसके बाद तुम्हें छोटी सी बात बताता हूँ, बस सब हो गया, जैसे 11-12 बज गए, 1 बज गए, कभी कभी सुबह 6 बजे तक भी चलता था। तो वहाँ पे लोग बोलते थे कि भाई जाना होता था जिसको, मान लो जैसे मुझे उठ के जाना है, तो मैं बोलूँगा कि गुड नाइट फ्रेंड्स, मैं सोने जा रहा हूँ। बस प्लीज, ये कैमरा है यार, तो क्या कंप्लीट कर। बीप कर दूंगा, बस सारा बीप कर दूंगा। कर देना भी। टेंशन नहीं मत लो। गुड नाइट फ्रेंड्स, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम सब अपनी XYZ कराओ। और मेरे ऐसे बोलने में अगर कोई हंस दिया तो फिर मेरा जाना कैंसिल। ओ और जो हंसा वो, हाँ सॉरी, मैं मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा वक्त हो गया ना। तो जब मैं ये बोलता था कि तुम सब अपनी XYZ कराओ, तो सब वो लोग जितने बैठे होते थे मेरे बैचमेट, सब लोग मुझे गालियाँ देते थे, क्योंकि वो तो बैठे रहेंगे और मैं जा रहा हूँ। वो लोग मुझे गालियाँ देते थे, और ऐसी वैसी नहीं, इन्वेंटिव बना के। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें नहीं है, हमको जो कोई तो दिक्कत आप नहीं। एक इन्वेंटिव गाली बता सकते हो। भाई तुम्हारा ताकि ये ताउम्र वो रील बन के घूमता रहे ना। रिपीट सर, बस अध्यापक, कैन यू रिपीट योरसेल्फ? अध्यापक हमें वो मतलब कैसा, क्या मतलब इसका कोई मतलब नहीं, मतलब ही नहीं था, कोई मतलब नहीं। गाली नहीं है रे। रिपीट तो करो। भाई गाली तो होगी, वो भाई ने तो एक वर्ड में बता दिया, ठीक है, पर गाली जो होती थी वो पैराग्राफ की होती थी। गाना लिख रहे गालियों में गाना है। पूरा वर्ष में ज्यादा चलता था, और गालियां पड़ रही हैं, और अगर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि गाली इन्वेंटिव है ना भाई, अगर मुझे हंसी आ गई तो मेरा जाना कैंसिल। तो मैं बैठूंगा सुबह 4 बजे तक। आखिरी किस्से पे जाने से पहले फेवरेट गाली कौन सी है आप लोगों की, अभी ये बता दो। हम लोग गाली नहीं देते, मैं भी नहीं देता। हम लोग कूटते हैं। फिर भी एक फेवरेट तो होगी। लिटरल अब्यूसिव, कुछ नहीं यार, अब तो वक्त हो गया, शादी हो गई सबकी। सुधर जाते हैं। आपके अंदर से जो निकल रही है बताओ। यार मैं तुम्हें किस्सा तो नहीं सुना रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, गाली जरूर बताऊँ। गाली है बुकलंडी। मतलब क्या है बुकलंडी का मतलब क्या? ये तुम खुद भी फिगर आउट करो हाँ। कि बुकलंडी होता क्या है। अरे इतने सारे आ रहे हैं मेरे दिमाग में, मतलब बस वही है, मतलब कितनी चीजें हो सकती ये क्या हैं। फिल्म मेकर का काम क्या होता है। मुझे ना मेरे एक बड़े करीबी सीनियर कुछ दिन पहले सिखाया था कि इनविजिबल स्पेसेस में सिनेमा होता है। तो वैसे बुकलंडी जो है, अब आप खुद सोचो, सब मैं नहीं बताऊंगा। क्रिकेट देखते हो, खेलते हो?
सर देखते हैं, सर को नॉलेज भी बहुत है, सर देखते हैं, सर को भी नॉलेज बहुत मैं है। खेलता था क्रिकेट और फुटबॉल कुछ भी। नहीं करता भाई, आप देखते भी नहीं हो ना देखता हूँ ना खेलता हूँ, कोई दिक्कत बैटिंग नहीं। वेटिंग इस वर्ल्ड कप की हार का अरे नहीं थोड़ा यार ये क्या बात है रिलीज हो रही है भाई मैं ये सब बातें कर रहा कट ये नहीं हो रहा, इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं। एक वेटी भी आसान मिला है। लेते फिर वो दौर में निकल गया है फिल्म के साथ आगे बढ़ना, आगे बढ़ते हैं। मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ आगे यार। वर्ल्ड कप की वर्ल्ड कप हाँ नया वाला T20 वो जो न्यूयॉर्क में मैच हो रहे हैं वही जाओ बिल्कुल नहीं करेंगे इस बारे में बात क्या हो गया? क्या गजब बेइज्जती हुई थी अभी तो मैं आगे बढ़ गया था, अब आप वापस ले आए हो। मुंह से बोला उसने ये तो क्रिकेट है, तुम करीना पे जाना भी मत। 1,35,000 इंडियंस हाँ It was the हाँ, बोला था ना, ऐसे बोला। saddest day. बैट कमिंस ने बोला था Saddest day. Saddest day। हाँ तो आपकी मूवी का नाम सुनने के बाद अल्फा बीटा गामा, तो आप तीनों में से अल्फा कौन है? मतलब सुपर अल्फा। सुपर अल्फा क्या मतलब, कुछ तो ऐसे किस्सा होगा। ये सुपर अल्फा है, ये सुपर अल्फा है, अल्फा ये है, बीटा यहाँ पे है नहीं, है नहीं। और गामा मैं हूँ, ये सर सुपर अल्फा है क्योंकि इन्होंने फिल्म बनाई है। खुश हो जाओ। और रियल मैं क्या ही लाइफ बोलूँ रियल लाइफ में कौन अल्फा है? रियल लाइफ में आप में से कोई अल्फा है? नहीं, अल्फा का डेफिनेशन क्या है? अल्फा का डेफिनेशन क्या है? जेन्युइन यार आजकल इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करते आजकल अल्फा की बातें नहीं करते, नई नई एनिमल आई है, बातें नहीं करते। हाँ। हाँ एनिमल कैसी लगी थी? मुझे अच्छी लगी। एनिमल, हाँ देखा है तूने? हाँ मैं ऑफ कोर्स अच्छा ये पिक्चर देखता नहीं है इसलिए पूछ रहा। एनिमल देखिए, एनिमल का क्योंकि मैं बोलना शुरू करूँगा तो बहुत लंबा जाएगा, आप बोलो पहले। नहीं आई लाइक द फिल्म। एंड आप सर? मैं हिंदी फिल्म देखता नहीं देखते हो? काफी टाइम हो गया मेरे को मतलब अगर देखेंगे तो नहीं आई थिंक देखी लास्ट हिंदी फिल्म आई हैड सीन वाज पठान और उसके पहले मैंने कौन सी हिंदी फिल्म देखी मुझे याद नहीं। डिड यू लाइक पठान? आई लाइक पठान यार, मतलब मुझे लगा बहुत एंटरटेनिंग फिल्म थी, जेन्युइनली बहुत मजा आया देख के। लाइक इनफैक्ट आई एम अ ह्यूज आई यूज्ड टू बी अ ह्यूज शाहरुख फैन, नाउ आई एम अ ह्यूज एडमायरर एंड आई एम अ कंप्लीट जॉन अब्राहम फैन। ओह So मतलब as a fan, मतलब it was a treat for me to watch that film. So I loved that film. बाकी Animal I mean से ट्रेलर देखा Animal का। तेरे फोन पे जो फोटो है वैसी बॉडी थी सर की। हाँ उससे ज़्यादा शार्प एब्स थे मेरे। मेरा फोन दिखाना हाँ वो जो वो है ना स्क्रीन से तेरा भाई उससे ज़्यादा शार्प वेरी एब्स। एक बार कंफर्म फोटो है क्या? बाद में दिखाऊंगा। इंस्टाग्राम वाली फोटो दिखा। अगर तुमको नहीं दिख रहा तो ये ऋतिक रोशन है, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा एडिट में, ऋतिक रोशन की फोटो है आप अभी वाली। सर इससे क्रिस्प होते हैं, इस पे इससे क्रिस्प ये मेरे को लग रहा है फोटोशॉप्ड है। नहीं नहीं इससे ज्यादा एब्स होते हैं। नहीं ये असली है। Yes, नहीं ऐसा असली है असली होता है, भाई के असली है, लेकिन सर इससे ज्यादा इससे ज़्यादा। भाई ने बनाया। आप मेरे को जिम ले चलो। अपने डाइट रूटीन दे दो कुछ भी। मेरे को खाना मार्च सिखाओ। 8/5/2020 ऐसा बॉडी था बिल्कुल। इससे हाँ, ज़्यादा ऐसे ही इतना था, शार्प तो था मिनिमम इतना शार्प। फिर अल्फा बीटा गामा। अच्छा तो मुझे लगा कि थोड़ा और कंस्ट्रक्टिव काम करता हूँ। एक्टर नहीं हूँ ना, मेरा काम नहीं है ये। तो आपने एक्टिंग छोड़ने का कब सोचा? फोटो देखो फर्स्ट ईयर के बाद एक एक्टिंग फर्स्ट ईयर मैंने खत्म किया ना, तो मैं समझ अरे यार ओहो अब तो पता चल गया क्रेजी भाई, नया देखा? वॉलपेपर वॉलपेपर मेरे को तो वॉलपेपर एयर ड्रॉप एयर ड्रॉप अगर नहीं दिख रहा तो वापस अगेन दिख जाएगी स्क्रीन पे। पास जाके दिखे। नहीं दिख जाएगी, एडिट अरे पास जाके तब देखो मेरे सर पास ये आके मुझे अभी दिखे दिखना। थे। हाँ सर एक्टिंग आप बता रहे थे, एक्टिंग छोड़ने। या मुझे फर्स्ट ईयर के एंड में समझ में आ गया था कि नहीं करूँगा मैं एज एन एक्टर काम, बहुत क्लियर था मैं। मतलब मेरे पता है क्या होता है, FTI जाके ना जो एक बेसिक चीज़ बदली मेरे अंदर वो था कि जैसे FTI से पहले मेरे लिए सिनेमा वाज लाइक व्हाट माय फादर एंड मदर हैड इंट्रोड्यूस्ड मी टू इंग्लिश फिल्म्स, हॉलीवुड, जेम्स बॉन्ड, दिस एंड दैट। थोड़ा बहुत वर्ल्ड सिनेमा देखा था, बोथ माय पेरेंट्स आर राइटर्स, ओह तो थोड़ा बहुत ऐसा हल्का फुल्का एक्सपोजर था मुझे, तो वो देखा था मैंने। बट देन द फन एलिमेंट्स आर पीपल लाइक शाहरुख सर, ऋतिक रोशन, you are in that space. Yeah. And but once you come to FTI and so what happens is I'm 6 feet 3 inches, right? तो जैसे ही आप, और बॉडी भी थोड़ी वैसी सी होती है ना, तो जैसे ही आप लंबे हुए भाई तो हीरो है, या मॉडल बने तो गए। वहाँ से जो आपकी बर्बादी शुरू होती है। So I didn't even know at that time। नहीं, मेरे को मालूम भी नहीं था कि मुझे एक्टिंग एक्चुअली करनी भी है, मुझे एक्टिंग आती भी नहीं थी। शायद मैं- आप उस I didn't know, but जब जगह में थे कि Yeah. पहुंच गए बस।
बट मैं FTI आने के बाद एंड उसके पहले मैंने करीब 1 साल थिएटर किया था एंड आई स्टार्ट लविंग द प्रोसेस ऑफ थिएटर. Yeah. बट बाय द टाइम आई रीच फिल्म स्कूल और मैंने कुछ स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह करे, somehow the idea of doing retakes was extremely boring. But what I used to wonder is यार कैमरा के पीछे 5 लोग क्या बातें कर रहे हैं यार, ये बहुत मजा आ रहा है ये लोग जो कर रहे हैं, ये मुझे भी करना है. So then I used to go and ask them, तुमने स्क्रिप्ट क्या लिखी है, उसमें लाइन क्या है, लाइन को ऐसे कर लो. तो बहुत लोगों को ना मैंने जैसे वन लाइनर्स में एक डायलॉग दे दिया बहुत क्रिस्प सा. So that is how it started. Then eventually I realized that ये ऐसा बन जाएगा तो इतना अच्छा लगेगा. So by the time I had finished my first year, very clear कि मेरे को ये कोर्स करके मैं एज एन एक्टर काम नहीं करूँगा. कोर्स खत्म करा, I went to Bombay and then I started working for television. और then I wrote a lot for television. What shows? If you can give us about, about 50 odd shows I've done for television. Okay. Yeah, been fiction. मेरे को तो आपकी हसल के लिए genuinely it's a very big hustle. Very inspirational. Whatever it takes यार, जो survival के लिए मिले. And in fact I love it. I'll tell you why, because क्या होता है ना, कई बार ऐसे writer आपको लगता है कि मैं ना, and I've met so many writers. I mean I've been in Bombay for now what 10 years, 11 years now. So people, I meet so many writers will say कि सर मैं लिख रहा हूँ, सर मैं लिख रहा हूँ, एक स्क्रिप्ट है मेरा, बहुत अच्छा आइडिया, तो लिखते नहीं हो स्क्रिप्ट. So when I started doing TV ना, वो रोज लिखने की आदत पड़ गई मुझे. That patience to actually sit down and write. Right. You know, a lot of I feel as a director, even as a writer, I think primarily I'm a writer. So I really feel that if you have that capacity to sit every day, because you know what, nothing is more scary than that blank word document that you see. That is so It is so difficult. कहाँ से शुरू होगा? लिखूं क्या? It's very difficult. So I think जो टेलीविजन किया ना, तो वहाँ से वो I think grip आया. और करते eventually. Is television like more taxing as a writer? I think it's more exhausting, but it preps you really well. It's like exercising. It's like gym. Yeah. Like if you ask me, let us say, bodybuilding is television, okay, and yoga is filmmaking. Filmmaking, yeah. Alright. That's the difference. एंड so obviously आपको ये पसंद नहीं आया था कि बार बार टेक्स देना, यार, तो बट एज अ डायरेक्टर आपको कैसे लगता है जब एक्टर्स बार बार टेक देते हैं? अब मजा आता है, because one is I can actually, one thing that I really that helps me is that when I work with actors, तो मैं कई बार ना समझ पाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है. एज एन एक्टर कहाँ एक्टर फंस रहा है, कहाँ ऐसा मुझे लगता है, मुझे पता नहीं तो हो रहा नहीं हो रहा, बिकॉज आई हैव बीन वर्क विद फिनोमिनल एक्टर्स, तो शायद मुझे लग रहा है कि मैं समझ पा रहा हूँ, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है. But I think that What is the maximum number of takes जो इन दोनों ने आपको दिए? या कभी 4-5 टेक्स ऊपर नहीं, 4-5 से नहीं, 4-5 से ऊपर कभी नहीं गए. 400-500 बोल रहे हैं. 4-5 टेक्स 4-5 कभी नहीं. So for you both actually, how difficult is it to getting into that space जो आपको director vision करवाना चाहता है, or is it very easy? नहीं, इन दिस केस तो हमने वर्कशॉप्स की है, ही वाज ऑलवेज देयर. तो जब व्हेन वी वर देयर ऑन द शूट, हमें लिटरली स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी एज इन लाइंस देखने की, क्योंकि उतना प्रेप था. हम लोगों ने 20 दिन शूट किया बताएं, और आई थिंक 100 पेज की स्क्रिप्ट थी, 6-6 पेज के सीन थे, एक्सट्रीमली वर्बोज सीन्स हैं, बहुत बातें होती हैं. कितनी लंबी है स्क्रिप्ट नहीं फिल्म 2 घंटे की, 20 दिन में 2 घंटे की फिल्म. और ये लोग, एंड मुझे याद है कि पूरे एक ही दिन, एक वन मोमेंट पूरे शूट पे कि एक बार भी किसी ने बोला अरे यार शंकर लाइन बताएगा अगली क्या है. They knew their lines, and as a director I had this one thing that I had asked them. I said lines ना set पे discuss नहीं करेंगे, lines पहले करेंगे. So I think there's a process. It's very simple. It's a technique. Acting, direction. I think it's a complete technique. लाइन मारेंगे. वो ऑर्गेनिक है. सवाल है, वो ऑर्गेनिक थोड़ा गंदा है, लेकिन मैंने मतलब जब हम छोटे थे, ग्रो गंदा सवाल मेरे से पूछ रहे हैं. गंदा मतलब सब जिक्र है ना कि ओपन सवाल है, मास्टर कैमरा आप भी जवाब दे सकते हो. लेकिन जब हम बड़े हो रहे थे, हमने ऐसे शाहरुख काजोल देखा था, हमको लगा ओ ये लोग प्यार में पागल हैं ऐसा. तो आपके साथ जेन्युइनली आज तक कभी ऐसा हुआ कि सेट पे आपको कोई बहुत पसंद आ गया हो इन रोमांटिक? अच्छा, यस, हमेशा होता है यार, हमेशा होता है. आप किसी के साथ अगर रोल कर रहे हो तो वो रोल तो जीना पड़ेगा ना भाई उस कैरेक्टर को उस समय. अब वो कट के बाद अलग होना चाहिए मामला, ठीक. कभी नहीं होता, कभी वक्त लगता है,
कभी थोड़ा और वक्त लगता है, कभी शादी कर लेते हैं लोग, है ना। पर वो तो सच्चाई तो दिखनी चाहिए ना बेटा, नहीं तो फिर कैसे हो। बड़ा सच है। हाँ, वो हर किसी के साथ होता है। वो कट के बाद आपको अलग करना पड़ता है अपने आप को। मेरे को तो करवाया गया था। इसको पकड़ खींचना पड़ा। हो जा अलग, वरना चलो ये तेरी नहीं है, फिल्म में भी नहीं है। हो नहीं सकती। अरे यार, मैं सिर्फ अदरक लेने जाता था फिल्म में भी नहीं। जो चाय बनाती थी खत्म बस। एक तुमको खतरनाक बात बताता हूँ मैं। बताओ सर। 2006 में शंकर मैंने यहाँ पे डायरेक्शन कोर्स के लिए अप्लाई किया था। हाँ, बिजली बोर्ड में मैं सेलेक्ट हो गया था। अरुणा राजे पाटिल मैम ने इंटरव्यू लिया था, ठीक है, सब हो गया, इंटरव्यू वगैरह सब हो गया। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बंदा होता था एक उस समय, जो रिसेप्शन वगैरह पे सब पैसे वैसे देखता था। तो पैसे थे ही नहीं, तो मैंने उसको बोला सर आप एडमिशन दे दो, जब मैं डायरेक्टर बन के फिल्में बनाऊँगा, पैसे कमाऊँगा, आपको फीस दे दूँगा, हाँ है ना, आप पोस्ट डेट चेक ले लो। तो उनको तभी समझ में आ गया, चेक ले। उनको तभी समझ में आ गया इसको थेरेपिस्ट की जरूरत है, गलत जगह आ गया। किस टाइम आज भी लगे हुए। ये हमारे लिए एसओपी है, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। माना पोस्ट डेटेड चेक ले लो। We work for PDC लोग। तो भाई नहीं माना, उसने मानता तो दिक्कत नहीं। भाई माँ उसने मुझे क्या सुझाव दिया, कहता आप सरकारी स्कूल में पढ़ लो, FTI में फ्री में पढ़ाते हैं। अच्छा फिर अब FTI। हाँ भाई, एक सेकंड, आपने डायरेक्शन कोर्स नहीं इसने एक्टिंग डायरेक्शन के लिए दिया था एग्जाम। फिर वहाँ जाते जाते बीच में मुझे लगा कि मैं सामने भी आस्ता हूँ कैमरे के, जरूर नहीं है पीछे जाना है। अब मैं सामने आया, और मैं सामने आया, मुझे बहुत मज़ा आता है। जैसे शंकर बोलता है कि टेक्स रिटेक्स देने में थोड़ा इश्यू रहता है, मुझे मज़ा आता है, क्योंकि ये बोलेगा ओके नहीं है तो मैं कुछ और करूँगा उसमें, बोले वो ओके नहीं है तो मैं किसी और तरह से खड़ा हो जाऊँगा, कुछ और लाइन बोल दूंगा, किसी और एंगल में बैठ जाऊँगा, तो ये और मजाक कर दूंगा। एक जैसा कुछ नहीं हो पाता मेरे से, अगर ये जोर करेगा तो शायद हो जाए, लेकिन मुझे मज़ा मैंने किया बहुत सारा जोर से किया मैंने। Sir, how was Bell Bottom for you? बेल बॉटम फॉर मी, IMDb पे है ना? साला बहुत रिसर्च किया है। पढ़ाई लिखाई तो करनी पड़ेगी ना सर। I also want to know. अक्षय सर के साथ सुबह सुबह कैसे लगा आप उठ के? उठते थे सुबह सेम रूम में थोड़ी होंगे। सेम रूम में, लेकिन होटल तो सेम। सेम बेल रूम में बॉटम तो से दिक्कत मेरे को ये सीखने को मिला बस कि 200 लोगों का क्रू है, 200 करोड़ की पिक्चर है, इतने बड़े क्रू में हवाई जहाज पूरा साला एयरपोर्ट ले लिया भाई, एंड दे जस्ट फिल्म क्रू ओवर देयर, देयर इज नोबडी एल्स, एंड देन हाउ डू यू कंट्रोल द थिंग्स, हाउ डू यू वर्क इन दैट। मैंने 40 के क्रू से 200 के क्रू में सीधा जंप छलांग मार दी भाई हाँ, ने। तो वो समझ आया कि वहाँ काम कैसे होता है। अच्छा, और कुछ नहीं। Bell Bottom was after Alpha Beta Gamma. या After the shoot of After the shoot, After yeah? the shoot of आफ्टर शूट, एंड ही गॉट मी द पार्ट हियर, ही गॉट मी द ऑडिशन ऑफ द अरे ऐसे कुछ नहीं, मुझे किसी ने कहा था ऐसे एक्टर चाहिए जिनके 6 पैक्स थे भाई साहब के भी। अच्छा, अभी भी है, तो अभी भी है थोड़ा। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने कहा कि आप गलत आदमी को कांटेक्ट करो। फिलहाल तो मेरे पास 6 पैक्स है नहीं, लेकिन मेरा एक भाई है, कमाल का एक्टर है और 6 पैक्स है। मान लो चौथा या पांचवा टेक हो गया इस फिल्म में, नहीं तो कोई और फिल्म में कि चौथा पांचवा टेक हो गया, ओके नहीं आ रहा है, एनजी लग रहा है। हैव यू हर्ड अबाउट टॉम क्रूज? ठीक, तो टॉम क्रूज जैसा आदमी रिडली अपना स्टैनली कुब्रिक के लिए आइज वाइट शट में 110 टेक्स देता है, एंड व्हाट इज द शॉट? आई जस्ट डू यू व्हाट इज द शॉट? आई एम नॉट टॉम क्रूज, बट लेट्स से दिस इज योर थिंग, भाई कैमरा आधा ही पकड़े, छोड़ दे कोई बात नहीं, वो पैर में ही आता है, उसका भी पैर में होगा, इतना आता है और बस ऐसे चल के अंदर आता है, यहाँ से आता है और मास्क उतारता है, पार्टी चल रही है, बस ये शॉट। बस ये सौ चल के आगे 100 मास्क टेक हुए उतार। उसके, 100 टेक हुए। हाँ, So again, to a great extent वो relationship भी है, डायरेक्टर एक्टर का रिलेशनशिप क्या है, हाँ, उसका एक्टर का स्टोरी से कनेक्ट क्या है, डायरेक्टर का स्टोरी से एक्टर से क्या कनेक्ट है, उस पे जैसे ना फॉर एग्जांपल लाइक जब मैं फिल्म बना रहा था तो मेरे लिए दोनों निशान सर वाज लाइक फॉर मी, नाउ आई कॉल हिम निशान भाई वैसा, बट फॉर द व्हेन आई अप्रोच्ड हिम फॉर द फर्स्ट टाइम्स एंड देयर इज अ कैरेक्टर कॉल्ड रविराज वर्मा, ही इज अ मलयाली बॉय एंड आई वांटेड समबडी to play a Bombay ka Malayali and not somebody who's like a hardcore Kerala. Yeah. I'm a half Malayali, so I had a certain thing कि इस तरह का मल्लू accent touch होना चाहिए.
So and amongst the first 3 names that we thought, one was Nishan Nanaiya. I said, "Arey, tu mere senior hai." I had never met him, and I think I had seen him once in the campus. I think I had never met him other than that. So I asked my chief assistant director, very dear friend. She did the acting workshop also. Her name was Savi Kundra. She's from NSD. So she reached out to him. I said, मैं बात करती हूँ ना, and she reached out to me. I said, नहीं करेगा, वो बड़ा स्टार है, वो नहीं करेगा. अरे बदलापुर बॉयज करी उसे नहीं करेगा यार. स्टार गोल्ड पे बार आती है वो फिल्म, वो नहीं करेगा. मैं बोले जा रहा हूँ बार ही. तो बात करके आए, कहती वो तेरे से कल सुबह बात करना चाहता है. तो मैंने कहा ओके. मैंने बात करी भाई से. भाई ने बोला आजा तू बात करते हैं. मैं इनसे मिलने के लिए गया और हम कोई कोविड का टाइम था तो नीचे लॉन में मिले और भाई ने 21 साल पूछा फिल्म बना लेगा. बोला फिर से पूछा तो फिल्म बना लेगा. तो कई बार पूछते रहे, मैं कई बार बोलता हाँ. मुझे स्टोरी अच्छी लगी एंड नॉट बिकॉज मुझे इसके एबिलिटी पे शक है. इट्स जस्ट दैट कि टाइम वैसा था. टाइम वैसा था एंड लोग लग रहा है मैं पागल हो गया. और फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो बहुत चीज़ें होती है प्रॉब्लम. क्योंकि मैंने काम किया फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर डायरेक्टर से. जब आप फर्स्ट टाइम डायरेक्टर भी और प्रोड्यूसर भी हो ना, तो आपका जो डायरेक्टर है हावी हो जाता है प्रोड्यूसर. बहुत चीज़ें, एक अलग प्रोड्यूसर चाहिए होता है रोक के रखे. आप बहुत चीज़ें हैं. तो मैं वो प्लस ऊपर से कोविड, सो वही चीज़ था. So when he came in, I was in awe of him. मतलब ना कह रहे अब ऐसे like You met him like a fan? या अरे पता होता है, अरे FTS कल ये आदमी स्टार बना, इसके साथ ये मेरी फिल्म कर रहा है, हाँ कर दी, ऐसा है ना. ठीक है अपने हाँ कर दी. ये सच है ना. तो जब अगर हम शूट पे जब गए ना, ऐसे फील थोड़ा सा कि इनको ना मैं इंस्ट्रक्शन कैसे दूँ. जैसे हम जब रीडिंग करते थे, आई रिमेंबर, तो रीडिंग करते थे तो क्या होगा कि ऐसे अमित रीडिंग कर रहा है, सब स्क्रिप्ट पढ़ रही है, रीना स्क्रिप्ट पढ़ रही है. रीना इज द एक्ट्रेस, द हीरोइन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म इज रीना. मिताली चौहान द कैरेक्टर. तो बेसिकली रीडिंग करते थे. तो के भी निशान भाई जो हैं वो एकदम से ना वो सीन के साथ सो जाते थे, सर ऐसे सो जाते थे. तो यार मुझे लग रहा है ये अपने सीन में पढ़ते हैं, बाकी तो सो जाते हैं. मुझे ऐसा लगा. बट 2 दिन चले गए. मैं तीसरे दिन आई टोल्ड सावी, तूने एक बार निशान भाई को जाके बोल कि यार थोड़ा सा पूरा स्क्रिप्ट पढ़ लें. तो you don't tell me how to take the workshop, okay? I know my job. I said okay fine. So he knows the whole script. I said okay. So ये कल स्क्रिप्ट रीडिंग करते हैं. He was literally reading the whole script without the script that day. So that's how you approach the actor. Even in the shoot, when we started rolling, एकदम मुझे लगा मैं इनको सही गलत कैसे बोलूँ. So he actually asked me, तेरे को शॉट मिला, तुझे टेक मिला, मैं फिर से कर दूँ, मुझे बता दे. So he literally he understood that, right? So that is the connection that you have that. मैं ये नहीं चाहता एडिट पे जाके मुझे गाली दे कि क्या कर दिया इसने. तू यहाँ करवा मुझे. And इनके साथ was completely different. So what happened was, so when I went to FTI, he was my immediate senior, acting batch. So used to call him Cheetah. His nickname is Cheetah. Amit Parvash is called Cheetah. Cheetah Londa. I said Londa तो एक ही campus में, यही Londa, यही. So when I thought of making my first film, I thought इनको cast करूँगा. In fact, before Alpha Beta Gamma, I met him a year ago, and I pitched a film called Pacemaker to him. Beautiful script. Very interesting story. Yeah. And नहीं बनाई मैंने. Thank God नहीं बनाई. Thank you नहीं बनाई. नहीं. कुछ फिल्में बनानी चाहिए, कुछ सुनानी चाहिए और कुछ छोड़ देनी चाहिए. ये अच्छा लाइन है, प्रोमो वाली लाइन. कुछ फिल्म बनानी चाहिए, कुछ छोड़ देनी चाहिए, कुछ सुनानी चाहिए. मैं इनको मिला 1 साल पहले. भाई हमारी बात हुई, उन्होंने पैसे मांगे, पैसे थे नहीं मेरे पास. एंड उस टाइम फंडिंग का भी जोर नहीं था. आई डिडंट अंडरस्टैंड. तो नहीं बनी फिल्म. बट अगेन आफ्टर अ ईयर, देन आई रोट द स्क्रिप्ट एंड आई विल नॉट नेम द एक्टर. नोबडी प्लीज नेम द एक्टर. इज अ वेरी डियर फ्रेंड. So I sent the script to him. He said I will produce the film. He said I will produce the film, but I will do this part of Chiranjeev Vashisht. Okay. I said no. I said listen sir, वो part तो मैंने cast कर दिया. So you had offered him Ravi's role. I had offered him no role. Oh. As an elder brother, I really respect him as an actor. I think he's been very kind to me. And I think one of the finest people I've met. So he said, I will produce the film for you. I will act, but I will play this role. I said, sir, my point is that I will work with my team, the people that I have chosen,
and this is the actor that I इस want. टाइम पे आपको ऐसा नहीं लगा कि यार प्रोड्यूसर भी मिल रहा है, एक अच्छा एक्टर भी मिल रहा है? हाँ मैंने भी सवाल पूछा था तो इससे. नहीं मैं बता तो यहाँ शंकर अलग है. but then first of all I made up my mind because and he was then so when I was working with him also on set तो ना so I used अलग चैलेंज इनके साथ ये था कि इनकी एक्टिंग देख के आप कैरिड अवे ना हो जाओ ये ओवर कर बोलो हाँ बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया लग रहा है सो आई हैड टू एक्चुअली कंट्रोल मैंने कि हाँ ये सीन में लग रहा है ये ठीक ज्यादा तो कंट्रोल उदय So कंट्रोल. with every actor, no, you have to kind of get that bond, and both of them have a very different chemistry with me also. Like I know ये कैसे सवाल करेंगे और ये कैसे सवाल करेंगे. और वो synergy eventually बन जाती है. तो मतलब इवन आई राइट समटाइम्स बट मैं मतलब प्रोफेशनली आई डोंट लुक एट इट दिस वे. लेकिन अगर मैं कोई प्ले व्ले लिख रहा हूँ कॉलेज में तो आई समटाइम्स कीप द एक्टर इन माई माइंड कि हाँ आई विल कास्ट दिस मैन. सो डिड you write it? I never write like that, and I think it's a very bad practice. Yeah. Personally, I think I it's know a very that, bad yeah, practice. that's true. हाँ. नहीं मिलते तो फिर I BTS. think You limit yourself. Probably this is one reason. I think we make as an industry we make very good films, but we can do much better work. Yeah. I'll tell you something. बड़ी दो छोटी observation है मेरी. I think mostly at the Oscars and all the big film awards outside our country, the final award is probably the best director and then the best picture. हाँ हाँ. Yes. Right. In India, Best it actor. is always the best Best actor. actor. But the idea is cinema for me, of movies for me, they're the director's medium, and the film is bigger than anybody. Yeah. Very So for me, the story, the script has to be in place. You write your film and then go look for your actors. Yeah. That is a non-negotiable for me. I never write like even if I'm so fond of Nishan and Amit, I will never write a film Thinking about them. I will write a film and I'll ask them, this is the film. Can you get into this role? Let's have a go at it. Best practice. I might have, I have a little controversial question, but do you think the film industry especially in Hindi film industry, do you think it is very heavily actor driven? Oh yeah, it is. See, there is a reason for that. Yeah. There's a reason for that. It's my own thinking. I could be wrong. Yeah. The reason being, we as a culture, we've evolved playing epics, Ram Leela, and Ras Leela, and Chow, Bharatnatyam. So the stories that we always depicted, or the nut acted them out, were epics, supposedly written by some great personalities. And apart from that, the actor in India is Nataraja, is Shiva himself. He is Lord Shiva. So यहाँ पे एक्टर की को प्रधान रखने की जो एक चली आ रही है ना पद्धति, वो कल्चरल है, तो वो रूटेड है, that is very so I'll tell you. तो मुझे मगर वो उस तरह से बड़ा- करते नहीं. तो ना मैं इसमें मुझे एक अलग मेरा थॉट मुझे लगता है कि फॉर एग्जांपल नाट्य शास्त्र भारत में बना हाँ. है ना तो आई थिंक स्टेज इज एन इंडियन थिंग Yeah. बट सिनेमा इज अ वेस्टर्न थिंग It is indeed. Okay. Lubrier brothers. समझा अभी समझा. बट हाँ सो बट या तो मुझे लगता है कि इट हैज टू बी स्टोरी ड्रिवन इट हैज टू बी डायरेक्टर सेंट्रिक इट हैज टू बी दैट यू राइट अ फिल्म एंड देन फिगर आउट द एक्टर ऑलवेज मुझे पता क्यों लगा, मुझे ऐसा लगा शंकर कि इन्होंने ये ताश इसलिए रखी है कि ये हमसे बोलेंगे कि आप इसमें से एक पत्ता निकालो और ये आपको मैजिक करके दिखा हाँ सकता है। फिर ये कोई मैजिक करेगा. करूँ कर सकते हैं। और अगर मैं ये वाला बहुत नंबर आया तो इसका मतलब कि आपकी लाइफ में ये होने वाला है. नहीं ये सब Tarot reading नहीं करना। मैजिक बहुत करूँ trick- एक मैजिक ट्रिक ये मैजिक ट्रिक करके लेकिन अल्फा बीटा गामा को ध्यान में रख के करनी है. हाँ. मैजिक ट्रिक या नाउ आई हैव दिस. एकदम से रुक गया था इसलिए सोचा कि ट्रिक को ऐसे अभी ये कट जाएगा. अच्छा मेरे से एक कार्ड पिक कर लो आप लोग में से कोई भी. ये डायरेक्टर साहब करेंगे. चलो, director या, साहब. उसके बाद आप करो सर ठीक है. आप करो. आप मेरे को बोलो स्टॉप Senior कभी हो. भी. हाँ स्टॉप कभी भी बोल देना. स्टॉप. दिस इज योर कार्ड सर. देख लो आप तीनों देख लो. नहीं हमको मत दिखा, आप कैमरे को भी देखो, हमको नहीं देखना, मेरे को बहुत विश्वास पे इस पे। मैं पैसे लगाने को तैयार हूँ। ठीक है डन. ठीक है. अभी आप उस नंबर को अपने दिमाग में जोर से बोलो. मिरर में देख रहा है नहीं मेरे को नहीं दिखा. कैमरा में चेक मैं करना। सही में नहीं दिखा. हमने नहीं देखा। अच्छा चलो ठीक है ओके आई विल गिव इट टू हिम जोर से बोलते रहो बोलते रहो. ओए ओए। सर अब आपने कलर देख लिया था. हाँ ब्लैक है. अरे कार्ड का. हाँ ब्लैक है.
अरे क्यों बता बोलना रहे नहीं हो? है। चलो ठीक है, बता दिया आपने, वो ठीक है, वो जाने दो। मैं अभी शेप तो पता है ना, दिमाग में बोलते रहो बार बार, हाँ शेप बोलते रहो। नाउ आई वांट यू टू से द होल कार्ड इन योर माइंड, हाँ ओके? नाउ कैन यू स्पेल इट इन योर हेड फॉर मी? EIGHT, हाँ it's 8 of clubs, right? ओके या क्या हो रहा है? It's an 8 of clubs, and the release date of Alpha Beta Gamma is. वाह तो कमाल है यार, क्या बात ऐसे ही नहीं है सर, हम भी पढ़े लिखे हैं। क्या बात है वाह। बहुत हरामी है ये लोग। अरे अच्छा प्रमोशन किया यार, तुम गाली दे रहे हो। भाई 8 मार्च निकाल दिए इन्होंने, हाँ क्या बात इसीलिए कार्ड लाए थे। नहीं, मैं लाया इसीलिए नहीं यार, टू गुड यार। नहीं इसीलिए लाया था वो। वाह बहुत बढ़िया यार। तूने उसका माइंड पढ़ लिया। सर है थोड़ी दाढ़ी ऐसी थोड़ी आई। यार मैं हार गया भाई। Acha, now we do the last Nishabd speech, question. हाँ. Just last question for each of you. How has this film changed you, and how is it? जहाँ तक पहुँच गई है, वो कैसे बदला है? एक होता है ना कि फिल्म के बाद आपको कुछ लेके जाते हो कोई चीज़। जैसे आपने बोला gratitude, and I think more than that, if you can say, are for each one of you, starting from you. What have taken from this film? What you've taken from this film, and can I add to that, just like from that film reaching to a film festival and reaching to this status, About to be released. ज़्यादा offers आए हैं क्या? ज़्यादा offers आने लग गए हैं क्या? नहीं वो तो अभी फिल्म हाँ, फ्राइडे के बाद पता चलेगी, आएगी फ्राइडे को आएगी। बट अदरवाइज आई विल टेल यू, आई हैव वर्कड इन मेनी फिल्म्स बिफोर। द थिंग दैट डिफरेंशिएट्स अल्फा बीटा गामा इज, ये लिटरली एक फैमिली एक्सपीरियंस था। ये बहुत लोग बोलेंगे कि हमारी फिल्म में ऐसे हो, बट व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज द कंडीशंस दैट वी शॉट इन, उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस थे और कैसे हमने बनाई, वो मुझे नहीं लगता, पता नहीं ये शायद दोबारा बना ले। मुझे अगर कोई बोलता कि ऐसे में फिल्म बना सकते हैं, तो मैं तभी भी बोलता था नहीं बन सकती है, अभी भी बोलता हूँ, लेकिन ये एक आदमी की वजह से बन पाई है। एंड उसमें एक जो आप क्या बोलते हैं उसको, आप डिटर्मिनेशन बोलो, जो कहते हैं ना दृढ़ विश्वास बोलो, तो वो मैंने देखा है। मुझे हमेशा से लगता था शायद अब रुक जाएगी पिक्चर, अब नहीं बनेगी, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स थे यार। हम एक बॉम्बे बड़े शहर से अब दूसरे शहर में जाते हो कोविड के टाइम पे, वहाँ वैसे ही लोग आपको ऑस्ट्रेसाइज कर देते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ाई करनी पड़ी थी। वहाँ पे सोसाइटी आपको अलाउ नहीं कर रही है, 40 जन किसी और शहर से आ रहे हैं, आप समझ रहे हो? उस टाइम पे जहाँ छींक रहे हो तो लोग आपको ये बोलते हैं नहीं निकाल दो ऐसे। मुझे लास्ट डे तक यकीन नहीं हुआ कि फिल्म बनेगी, और जब बन गई तब मैंने इसको कहा भाई ये पिक्चर नहीं बनने के 100 रीज़न थे, बन गई ना तो ये अपनी दौड़ लगाएगी और लोगों को अच्छी लगेगी। और वैसे ही हुआ, कांस, बर्लिन हर जगह। तो ये हमारी फिल्म नहीं है, ये भगवान की फिल्म है, उन्होंने बनाई है। वो चाहते हैं ये फिल्म बने, स्टोरी बने, और वही रिलीज़ करेंगे, वही और वही हुआ। वो मेरे हिसाब से तो मैंने वो देखा है, वो एक्सपीरियंस किया है। आपके लिए सर? मेरा भी यार, मैं तो जिस दिन मैंने इसको पहली बार देखा था 2009 में, मुझे लगा लड़का अच्छा है, खूबसूरत है, अच्छा कुछ भी करेगा, अच्छा करेगा, बहुत सुंदर। और मुझे एक सेकंड के लिए भी डाउट नहीं था जिस दिन इसका पहला फ़ोन आया, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, इसने बोला मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मुझे एक सेकंड के लिए डाउट नहीं था कि ये फिल्म नहीं बना पाएगा। क्योंकि निशान सर ने शायद देखा नहीं इसको पहले। हाँ। अब जैसे मैं तुमसे मिला हूँ, तुम बोलोगे मेरे को 15 साल बाद कि सर आपको एक बुड्ढे के रोल में कास्ट करना है, मैं पिक्चर बना रहा हूँ, मुझे एक सेकंड भी डाउट नहीं हुआ कि तू पिक्चर नहीं बना पाएगा, क्योंकि जज्बा है ना भाई। वो जज्बा इसका तब देखा था, वो उस पर यकीन था पूरा कि बनाएगा। उस बात पे कुछ दिक्कत ही नहीं थी, रिलीज़ भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं थी, इस पर भरोसा है, उतना है। अभी मुझे क्या मिला पिक्चर से, मुझे तो ये मिला कि हाँ यार सपने सच होते हैं। ये बात सच्ची। और मुझे कभी इसके एबिलिटी पे डाउट नहीं था, कंडीशंस पे ये प्रॉब्लम, कंडीशंस। क्योंकि जैसे इसने स्टोरी नरेट किया, जिसने और इसने जब भी आपको एज एन एक्टर बोलते हैं ना, आप कैसे डिसाइड करते हो, आप जब डायरेक्टर आपको नरेट करता है नेक्स्ट स्क्रिप्ट
और आपके कुछ इनहेरेंट सवाल होते हैं, अगर वो डायरेक्टर आंसर कर पाया तो आपको पता है ये फिल्म देख रहा है, और जो देख रहा है ना वो फिल्म बेसिक तो बना ही लेगा, बाकी तो बजट और वो लोग कौन आ रहे हो, अदरवाइज वो बेसिक वो बना लेगा, वो जस्टिस कर पाएगा। जो मैं उस दिन जब मैं मिला, इसने स्टोरी सुना, मैं समझ गया बना लेगा। आप पहली बार मिले थे उस इससे ना? मैं तो काफ़ी बार मिल चुका था, इसलिए वो यकीन था, वो यकीन है। हर फिल्म में ना एक क्रू होता है, कास्ट होती है, सबका एक कुछ ना कुछ जाता है, कोई टाइम देता है, कोई वर्कशॉप्स के टाइम पे अपना टाइम देता है, आप तो अपना सब कुछ ही दे रहे हो, तो दैट सैक्रिफाइस वाला जो पार्ट होता है, एवरीवन गिविंग इन समथिंग टू द फिल्म, कैन यू जस्ट कैन यू टेल पीपल कि एक फिल्म बनाने में मेहनत कितनी लगती है? क्योंकि देखने वाला तो 1-2 सेकंड में बता देगा भाई ये अच्छी है, ये बुरी है, ये वैसी है, वैसी है, वो 2 सेकंड लगते हैं उनको जज करने में, लेकिन वो पीछे की जो 50 लोगों की मेहनत होती है ना, वो शायद किसी को दिखे ना दिखे, क्योंकि हमको हम ऐसा कह सकते हैं हमको थोड़ा बहुत समझ आता है इसके बारे में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उसके ऊपर थोड़ा बताओ इस बारे में। हमारी जब बात शुरू हुई थी ना कि वास की इंडिया के वर्ल्ड कप का क्या फीलिंग था, करेक्ट, और सबको लगता है सब वी लॉस्ट द वर्ल्ड कप एंड ऑल, लेकिन हम लोग फाइनल तक पहुंचे। वो जितने प्लेयर्स खेल रहे हैं सारे माइंड ब्लोइंग प्लेयर्स हैं, ठीक है, और वो सब ये जानते हुए खेलते हैं कि अगर हम हार गए ना तो लोग डिसअपॉइंटेड होंगे। सो द मोमेंट यू बिकम अ फिल्म मेकर, बिकम एन आर्टिस्ट, तो हमको पता है यार कि हम भले 10 साल में बनाएंगे लेकिन हमको 2 मिनट में जज करा जाएगा, राइट? इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग दैट आई ऑनेस्टली से दिस टू पीपल, वी हैव चोजन दिस, और इसके पर्क्स हैं, राइट? वी सिटिंग एट अ पॉडकास्ट टॉकिंग टू 3 young people, right? Isn't it? Yeah, that's true. Right. So there is a bargain, there is a barter in life, right? There's a win everywhere. There's a win everywhere. So I choose this. This is great. This is what will help us grow every day. And जहाँ तक sacrifice की बात है यार, तो मतलब मेरे सारे पैसे खर्च हो गए, मेरा घर बिक गया बॉम्बे का, ठीक है, और I was under debt. अभी कुछ डेट निकल गया, कुछ डेट बचा है, होपफुली निकल जाएगा, होपफुली इसी फिल्म निकल जाएगा। और लेकिन but what the offers, yeah, but what Alpha Beta Gamma did was it gave me a huge validation as a director, Obviously, yes. right? And people now, at least पहले होता था, at least there is at least one meeting that is always waiting for me. That is one very good thing that has happened after I made a film. And like I said, and how even Nishan Bhai said, it is, I have actually realized कि ना इन 3-4 सालों में कि मेरे हाथ में बहुत कुछ होता नहीं है। द आइडिया ना कि मैं कर दूंगा ना, मेरा मैं एक्चुअली चला गया 3-4 साल में। वो ये फिल्म की अपनी जर्नी होती है, अपनी किस्मत अपने आप चलती चली जाती, कहीं से कहीं जाए, कुछ जो फिल्म आज फाइनल रिलीज होने वाली है उसमें फर्स्ट स्टार्ट में इतना डिफरेंस है, मैंने सोचा भी नहीं था। So I don't even know, right? So it's like actually bringing up a child, पता है? वो बच्चा आप उसको अपनी चीजें दे सकते हो, किस्मत नहीं बड़ा अपने हिसाब से ही होगा, करेक्ट? एंड सिमिलरली वैसे इंडिपेंडेंट सिनेमा भी है, पता है? दैट इज व्हाट आई से, सी दैट इज व्हाट इज सिनेमा। लोग बोलते हैं फेस्टिवल क्या है, ये सिनेमा होता है, वैसा होता है। फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल क्या होता है? फेस्टिवल क्या होता है? सेलिब्रेशन। सेलिब्रेट क्या करते हो? कुछ नया सेलिब्रेट करते हो, कुछ नया, है ना? तो नया सिनेमा बने तो सेलिब्रेट होगा। तो मेरा मानना है कि सिमिलरली नया टैलेंट, नए लोग, तुम फिल्म स्कूल के स्टूडेंट्स हो, राइट? इंडिपेंडेंट सिनेमा इज इंडिपेंडेंट वॉइस, एक आवाज़ है, लोगों के अंदर दिमाग है, लोग सोचते हैं, ख्याल आते हैं, कोई कहानी लिखता है, कुछ सोचता है, क्योंकि कहानी होती है, इसे किरदार है, क्योंकि जब कहीं से आता है ना, तुम जिस शहर से आए हो, तुम नोएडा से आए, राइट? तो तुमने बताया नोएडा वैसा शहर है, वैसा जिया है, सो यू ब्रिंग ऑल ऑफ दैट इनटू द स्टोरी। तो क्या होता है ना, वो मार्केट के अंदर आके ना वो थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं कंटामिनेट, थोड़ा सा करप्ट हो जाता है कभी कभी, बिकॉज व्हाट विल हैपन है, उसको ना एक नंबर बना देंगे कि इस तरह की फिल्म ट्रेंड करी तो ऐसा बनना चाहिए, एक बॉक्स बना देते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं कि इस तरह की फिल्म बनेगी तो हिट होगी, इसका बॉक्स ऑफिस इतना होगा, इसका वैसा होगा। देयर इज अ फॉर्मूला, ऐसा एक्टर, ये लोग, एक कास्ट, ऐसा मोल्ड, ऐसा विजुअली बहुत बड़ा सीन होना चाहिए तो फिल्म बन जाती है। सो देयर इज अ फॉर्मूला, बट एक बड़ी बेसिक बात बोल, सो दिस इज व्हाट आई फील इज द इंडिपेंडेंट सिनेमा, बिकॉज़ देयर आर सो मेनी पीपल, मतलब वो हिंदी में कहते हैं ना कि हमारे देश के बारे में कि कोस कोस पर बदले बानी, 4 कोस पर बानी, राइट? जब मैं इफ़ी गया मुझे पता लगा कि 37 भाषाओं में फिल्में आती हैं इफ़ी में, 37 लैंग्वेज सिनेमा बनता है हमारे देश में। कितने सारे फिल्म मेकर्स होंगे, कितने सारे राइटर्स होंगे यार। 37 रैंकिंग नहीं, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। 37 लैंग्वेज में सिनेमा
सिनेमा है। फिल्में लोग सबमिट कर रहे हैं इफी में, राइट? इतना सिनेमा बन रहा है, It's a very big thing. so that's what I'm saying. तो मेरे लिए मानना यार ये कि अगर आज मेरी फिल्म रिलीज हो रही है, आई थिंक a lot of independent filmmakers would feel हाँ यार ये फिल्म रिलीज हो सकती है. हाँ So that is the one big thing that I would say. And yeah, और बाकी बढ़िया है, बाकी और क्या चाहिए, बाकी फिल्म रिलीज होनी चाहिए, हम लोग सब चिल करेंगे और अगली फिल्म बनाएंगे. और एडिंग ऑन टू दिस, जैसे आपने कहा कि एक बॉक्स बना देते हैं, हाँ तो जैसे बॉक्स बना, तो मैं जो बात सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, सब एक बॉक्स में पूरा सिनेमा हम लोग डाल के बंद कर देते हैं, जबकि द बेसिक थॉट इज जिस दिन एक बच्चा अपनी माँ या बाप को बोलता है ना मुझे फिल्म बनानी है, वो थॉट ही आउट ऑफ द बॉक्स होता है. हाँ एग्जैक्टली बहुत सही बात है. सही थे. बहुत सही बात है. तो सत्य आई मीन बात है. मैं इस वक्त इतना फैन मोमेंट टाइप हो रहा है ना मेरे को अभी आपकी सारी बातें सुन के कि तो कुछ कहानियां बनाना सच बात है ना, हाँ. कुछ सुनाना और कुछ छोड़ देना. छोड़ देना. चलो और वो जानना कि क्या क्या करना क्या करना है, है। वो ना, वो लर्निंग रहेगी. वो लर्निंग है. Friends, Alpha Beta Gamma is releasing on 8th of March 2024. Please go out there in the theaters near you and watch it. बहुत प्यार से बनाई है, बहुत प्यार से देखना और मजा आएगा, ये हमारा प्रॉमिस है. 8 मार्च को इस फ्राइडे इस फ्राइडे जरूर देखना अल्फा बीटा. Alpha Beta Gamma. 8 मार्च को सब लोग देखेंगे जाके थिएटर में अल्फा बीटा गामा. एंड अभी सब्सक्राइब टू फ्री द पीपल. Bye guys, bye. Thank you so much. Thank you so much.